Hello everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. Today again I am back with 50 expected MCQs regarding MS Word and MS Excel. Okay, so it is coming under the concept of MS Office. So now let's get started, and before proceeding this video, please subscribe my channel, and please do share, like, and do comment in my video in the comment section, so that as usual any doubt in any topic, please let me know in the comment section and I will clear your doubt and I will make a separate video. ओके एंड यहाँ पे अभी भी मैंने जो क्वेश्चन सब बना है जिस पे मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरी है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन वो कर दी हूँ. अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे वो कमेंट के ज़रिए बता दीजिए, सो दैट कि मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँगी. ऑल राइट, सो चलिए, मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बोला है, मैंने 50 मोस्ट MCQ एक्सपेक्टेड डाला है MS वर्ड एंड MS एक्सेल के लिए. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कंट्रोल प्लस E used for? Each question has 4 options and you have to select one option that is the correct option. Okay, so I have highlighted here the correct option. So why control plus E is used for? Align center. Center alignment के लिए आपको control plus E shortcut की आपको use करना है. Next question, which of the following is not in home ribbon? Font color, change style, columns. So column is not actually coming under home ribbon. बाकी font color, change style, ये जो आपका सब है, that is coming under home ribbon. And that is home ribbon means this is a standard ribbon. It contains a home tab and a manage tab. इतना आता है हमारे home ribbon में. Next question, why control plus O is used for? Save documents, open documents, print documents and close documents. The correct answer is open documents. For opening a document, we use control plus O. Next question, which enables us to move directly to specific location in a document? That is, the correct answer is bookmark. Why bookmark? Suppose I have 20 pages of document and I want to go page number 6. And I have applied bookmark in that, and I just, after applying the bookmark, I just close that document, and very next day if I want to again go that document 6 directly, then I can go directly to page 6. I can jump to page 6 directly. I need not to search from page 1, page 2, page 3, no, because I have applied the bookmark, so I can go directly to page 6 without searching any other documents. So this is the benefit of bookmark, and that's why we apply bookmark in a document to move directly to a specific location. All right, next question, which is the shortcut key for update formula and table? This is the MS Excel question. टेबल में फॉर्मूला अपडेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? दैट इज F9 इज द शॉर्टकट की दैट यू कैन अपडेट फॉर्मूला इन द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये दोनों ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं हमारा कर्सर मूव करके पेज अप पेज डाउन करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following allows us to paste data multiple times? That is window clipboard and office clipboard. From by using both this clipboard, we can paste our data multiple times. Okay, next question, which of the following is not a way to complete a cell entry? So what are the options? Pressing enter, pressing any arrow key, clicking enter button on formula bar, pressing space bar. So which is not the correct way? That is the pressing the space bar. This is not the correct way to complete a cell entry, because if we are applying that is the answer. Okay, next question, comments put in cell are called? जो comments cell के अंदर हम लोग ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? cell tip. Because if we are applying comments to a cell, then it's called a cell tip. Okay, next question, अभी ये comment हम लोग कैसे ऐड करेंगे? तो फर्स्ट you have to go to insert button, next is your whatever may be the comment, you can add that. So comments can be added to cell by using first insert button, then the comment. Next question, when the formula bar is active, you can see, जब फॉर्मूला बार आपका एक्टिव होता है, ये सारे MS, ये जो क्वेश्चन है वो MS एक्सेल के हैं, ठीक है, मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ आपका, ये आपका जो आया, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस अस टू पेस्ट डेटा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट सेल एंट्री। ये सब आपका आ गया आपका MS एक्सेल का। मैं जहाँ पे बोल रही हूँ एक्सेल, वो एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी व्हाट, the enter button, the cancel button, the edit button, the edit formula button और all of the above। मीन्स जब फॉर्मूला बार आपका एक्टिव होता है ये सारे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर इट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू कैन यूज। सो अब ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, क्या यूज करेंगे उसके लिए, वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। बाय यूजिंग वैल्यू एंड सेल रेफरेंस वी कैन क्रिएट अ फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, status indicators are located in the dash, means where status indicators are located, that is formula bar is the correct answer, because in MS Excel अब जो भी current status होता है ना कोई भी सेल का, वो फॉर्मूला बार में ही आपका दिखता है। सो जो स्टेटस इंडिकेटर्स है वो फॉर्मूला बार में ही आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल फाइल्स हैव a default extension of XLS, that is the default extension of Excel files। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन एंटर विच टाइप ऑफ डेटा इनटू वर्कशीट सेल्स। वर्कशीट सेल के अंदर हम लोग किस टाइप के डेटा एंटर कर सकते हैं, लेवल्स, वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। ये सारे यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, वैल्यूज ओनली, फॉर्मूलाज ओनली, लेवल्स, वैल्यूज एंड फॉर्मूला नॉन ऑफ द अबव। सो हम लोग लेवल्स, वैल्यूज, फॉर्मूला सारे हम लोग एंटर कर सकते हैं इन टू आवर वर्कशीट सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग द माउस और एरो कीज what is the fastest way of getting to cell A1 in a spreadsheet। हम लोग माउस और एरो की को बिना यूज़ करके अगर हम लोग डायरेक्टली एक A1 स्प्रेडशीट को जाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारा क्या है, उसके लिए तो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Home। मीन्स नो मैटर वेर एवर यू आर इन योर स्प्रेडशीट, बाय प्रेसिंग Ctrl+Home you can directly reach to A1 cell। okay, next question, the F12 key is used to open dash, open dialog box, save dialog box, close dialog box or save as dialog box। So correct answer is by pressing F12 key you can open save as dialog box। Next question, what is the shortcut key for find and replace dialog box। The correct answer is Ctrl+G is used टू फाइंड एंड रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे कुछ लिखा है, सिर्फ फाइंड के लिए हम Ctrl+F यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ रिप्लेस के लिए हम लोग Ctrl+H शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, गो टू के लिए हम Ctrl+G यूज़ करते हैं, पर फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम लोग शॉर्टकट की मतलब फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये तीनों के लिए हम Ctrl+G यूज़ करते हैं। अगर इंडिविजुअल करना है तो फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H एंड गो टू के लिए आपका Ctrl+G। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग डैश। इफ यू आर सिलेक्टिंग टेक्स्ट, व्हाट सिग्निफाइज दैट? इट मीन्स a word we can select, an entire sentence we can select, a whole document we can select, means all of the any of the above we can do by selecting a text means। okay, which formatting means changing the way letters, numbers, punctuation marks and symbols appear on the screen in print। so क्या क्या ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड ऑब्जेक्ट। द करेक्ट आंसर है कैरेक्टर। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स हम लोग उसमें लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल्स ये सब चेंज कर सकते हैं कैरेक्टर्स फॉर्मेटिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the maximum scale percentage available in MS Word? What is the maximum scale for percentage? That is the 500 is the maximum scale percentage। Next question, which of the following we can change using the page setup dialog box? What are the options? Margins, page orientation, vertical alignment, all of the above। So the correct answer is all of the above, means by page setup dialog box, using page setup dialog box we can change margins, page orientation, vertical alignments, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्या कर सकते हैं? पेपर साइज, पेपर ओरिएंटेशन, प्रिंट बोथ साइड ऑफ द पेपर्स, reduce और enlarge your printout, adjust the printable area, ये सब कर सकते हैं। और ये कहाँ से करेंगे आप? यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम द फाइल मेन्यू ऑफ योर एप्लीकेशन। ये फाइल मेन्यू का जो आपके जो एप्लीकेशन में फाइल मेन्यू है वहाँ से सिलेक्ट करके द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। और ये आपको जब
अपीयर होने के बाद ये सारे इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर विल वी यूज. मीन्स अगर आप डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग रखना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंट के डिफरेंट एडिशंस को, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? वर्जन्स. वर्जन्स इज द करेक्ट आंसर टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर we will use. Okay, next question, how can you break the current column and start a new column immediately. आप करंट कॉलम को ब्रेक करके न्यू कॉलम कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो उसके लिए हमें क्या शॉर्टकट की यूज़ करना है? दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर. दिस इज द करेक्ट आंसर. कि हम लोग अगर मल्टीपल हम लोग ओपन किए हमारे शेल ओपन किए हैं, तो हम लोग इमीडिएटली उस सेल को मतलब हम लोग ओपन अगर किए हैं मल्टीपल कॉलम्स, तो वहाँ पे हम लोग ये डायरेक्टली जा सकते हैं. कहाँ पे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबा के हम लोग एक न्यू कॉलम को जा सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड थीसरस टूल इज यूज फॉर डैश. थीसरस टूल क्या यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं एम एस वर्ड में? तो सिनोनिम्स वर्ड के लिए. सिनोनिम वर्ड क्या होता है? डिफरेंट वर्ड विद द सेम मीनिंग, उसको हम लोग सिनोनिम बोलते हैं ना. ऑल राइट. सो उसमें एज वेल एज एंटोनिम्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज ऑपोजिट वर्ड. सो एम एस वर्ड में थेसरस टूल स्टैंड्स फॉर सिनोनिम वर्ड्स. यहाँ के नहीं तो सिनोनिम एंटोनिम्स दोनों पॉसिबल है थेसरस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर डैश. न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम लोग शॉर्टकट के क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट. फॉर्मेटिंग टूल बार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार. सो द करेक्ट आंसर इज पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या वर्टिकल अलाइनमेंट अपना चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड. फाइंड के लिए क्या शॉर्टकट की है? दैट इज कंट्रोल प्लस एफ. दैट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन्यू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज साइज एंड टाइपफेस. कौन सा मेन्यू हम लोग यूज़ करते हैं एम एस वर्ड में ये साइज एंड टाइपफेस चेंज करने के लिए? दैट इज द फॉर्मेट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट. वो देखिए, अभी एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक. वर्कबुक किसको बोलते हैं? आपका कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को बोलते हैं आपका वर्कबुक. तो उसमें हम लोग कितने सीट्स हम लोग अभी ओपन कर सकते हैं? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक? 3. 3 शीट मीन्स शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट मोर देन वी कैन इंसर्ट ऑल्सो. ओके, next question, which of the following is a popular DOS based spreadsheet package. So the correct answer is Lotus 123 is the popular DOS based spreadsheet package. Next question, in Excel cells are labeled as. सेल को कैसे लेबल किया जाता है? A1 B1 C1 इज द करेक्ट आंसर. कॉलम को कैसे लेबल किया जाता है? ABC. एंड रोज को कैसे लेबल किया जाता है? 1 2 3. ये तीनों आपको याद रखना है. 1 2 3 आपका हो गया आपका रो. कॉलम के लिए हो गया आपका ABC. एंड सेल्स के लिए A1 B1 C1 बिकॉज सेल्स मीन्स व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जहाँ पे रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो वहाँ पे सेल फॉर्मेशन होता है. सेल मीन्स क्या? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स वो लोग फॉर्मेशन करते हैं रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे देखिए A1 B1 C1. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस डैश टू ब्रिंग द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स ओपन कर लेके क्या शॉर्टकट की है आपका? शिफ्ट प्लस F5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट ए चार्ट इन एक्सेल प्रेस डैश. F11 function key we can use to create a chart in Excel. Okay, next question, while selecting multiple worksheets in Excel, the following key must also be used when clicking the sheet tab. कौन सा की हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए? कंट्रोल. मल्टीपल वर्कशीट इन एक्सेल सिलेक्ट करने के लिए आपको ये हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the first version of MX Excel released? When was the first version of MX Excel released? So the correct answer is 1985. In the year 1985, the first version of MS Excel has been released. Next question,
मैंने ऑलरेडी इसका आंसर आपको क्लियर कर दिया था. इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज obviously A, B and C and so on. In Excel to create a new workbook, shortcut key is, एक न्यू वर्कबुक हमें अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N. ठीक है, एक अगर न्यू वर्कबुक क्रिएट किया है, याद रखिएगा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हमारा वर्कबुक बोलते हैं. ठीक है ना. इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स. तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन की यूज करेंगे. तो करेक्ट आंसर इज F12. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एक्सेल Ctrl+S कैन बी यूज्ड. सेव एज, स्टार्ट अ न्यू वर्कबुक, switch between open tab. So correct answer is save. Means if you have worked in any file, then you can save it by using save option. Any file. Okay, next question. In Excel workbook can be closed by using, वर्कबुक कैसे क्लोज हो सकता है, उसके लिए क्या है शॉर्टकट ये Ctrl+W. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपन वर्कबुक कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग व्हाट. Suppose we have opened many workbook and we want to switch from one to another, then what is the shortcut key? That is the Ctrl+Tab. तो आप जितना भी चाहे वर्कबुक ओपन करो, अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्कबुक को स्विच करना है देन आप Ctrl+Tab यूज करके स्विच कर सकते हो. बट सी इफ यू वांट टू डू इट विथ माउस you can also do it, but it will take too much time. So by using shortcut key, this is become more easier. Now in Excel data can be sorted using what? Filter function, lookup function, array function, operator function. The correct answer is filter function. Filter function use करके डेटा हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the shortcut key to highlight the entire column? If you want to highlight the entire column in Excel, then the correct answer for it is Ctrl+Spacebar. Okay, and if you want to select highlight an entire row, then we will go with Shift+Spacebar. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट कीप इट इन योर माइंड. कलम्स हाईलाइट करने के लिए Ctrl+Spacebar, रो हाईलाइट करने के लिए Shift+Spacebar, एंड टू सिलेक्ट ऑल रोज एंड कलम्स Ctrl+A तो ऑप्शन है ही, क्योंकि Ctrl+A में हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं. सो सेम इन द केस ऑफ एक्सेल ऑल्सो. तो एंटायर रो एंड कलम सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस. मैंने जैसे कि आपको बोला है ग्रुप ऑफ वर्कबुक नोन एज योर वर्क स्पेस. Okay, so the group of workbook is known as your workspace. Next question. In which tab you will find the auto sum button? Formatting tab, clipboard tab, formula tab and standard tab. So the correct answer is formula tab में अब auto sum button आपको मिल सकता है. And see, also we can find the auto sum button in home tab also, but here the home tab option not provided. That's why whatever the option provided, we will select from these 4 options. So the correct answer is formula tab. But in home tab also you can find your auto sum button, but according to question this is formula tab. And what is the purpose of auto sum? Obviously display the sum of the selected cell directly. जो भी सिलेक्टेड सेल है आपका उसका सम करके वो डिस्प्ले कर देगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट एंड नंबर राइट अलाइनमेंट, सेंट्रली अलाइंड और लेफ्ट अलाइंड. तो करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट एंड नंबर राइट अलाइनमेंट. ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब आप जो भी टाइप करते हैं हमारा टेक्स्ट वो लेफ्ट साइड रहता है, एंड जो भी टाइप करते हैं हम नंबर वो राइट साइड रहता है बाय डिफॉल्ट, एंड वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली. बाय डिफॉल्ट ये ऐसा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस डैश Ctrl+O. वी कैन प्रेस Ctrl+O to display the open dialog box. Next question. Last question mine. Which of the following is a MS Excel file format is, that is .xlsx is the file format of MS Excel. All right, so this is my 50 question. Next class I will bring more 50 questions regarding this Microsoft Office. And please guys, please subscribe my channel, and those who are preparing for the exam like OPSC, SSC, UPSC, OSCC, these candidates can follow these questions because I am updating this question according to your syllabus. So please
keep in touch and just follow my channels and follow my every video, and please do comment me in the comment section wherever you find any doubt. And do not forget, very important, do not forget to subscribe my channel and share my video as much as possible. Okay, thank you.